پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔
जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, दरा हाले के हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं मुआफ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूं। जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और कुफ्र की हालत ही में जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में तखफीफ होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की साख्त में, रात और दिन के पैहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफा की चीजें लिए हुए दरियाओं और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं। बेशुमार निशानियां हैं। मगर वहदत खुदावंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और उनके ऐसे गिरबीदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गिरबीदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में हैं और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सजा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे, मगर सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा। और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता, तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह इन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे, मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। लोगों, जमीन में जो हलाल और पाक चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम्हें बदी और फहश का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुताल्लिक तुम्हें इल्म नहीं है कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं। इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अक्ल से कुछ भी काम ना लिया हो और राह रास्त ना पाई हो, तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे। ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार ना खाओ, खून से और सूअर के गोश्त से परहेज करो और कोई ऐसी चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या जरूरत की हद से तजावुज करे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये है कि जो लोग उन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए हैं
और थोड़े से दुनियावी फायदों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। क़यामत के रोज अल्लाह हरगिज उनसे बात न करेगा, न उन्हें पाकीज़ा ठहराएगा, और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले जलालत खरीदी और मग़फ़िरत के बदले अजाब मूल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को और यौम आखिर और मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों और यतीमों पर, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तकी हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में किसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाए, गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से किसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल व खिरत रखने वालों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करे। ये हक है मुत्तकी लोगों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो इसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नादानिस्ता या कसदन हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।